پہلے بات کریں شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور آج انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ عزادار نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس نکالے جائیں گے۔ آپ کو سوال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ کراچی میں مرکزی جلوس کچھ دیر میں نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ گھاردر پر ختم ہوگا۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس شہدائے چوک علمدار روڈ سے برآمد ہو گیا ہے، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا علمدار روڈ پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ راولپنڈی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حفاظت علی شاہ تیلی محلہ سے برآمد ہوگا۔ جلوس روٹ کو سیل کر کے شرکاء کے داخلے کے لیے ایک راستہ مختص کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں یوم عاشور کا جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس آج کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں کے لیے سبیلیں اور نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں 10 محرم کا مرکزی جلوس عزاخانہ شبیر سے برآمد ہوگا۔ ضلع بھر میں سینکڑوں مجالس اور جلوسوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ ملتان میں عاشوروں کا مرکزی جلوس امام بارگاہ ہیرا حیدریہ سے برآمد ہوگا، جو کہ بعد نماز مغرب امام بارگاہ شاہ شمس تبریز پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ تو مختلف شہروں کی صورتحال آپ تک پہنچا رہے ہیں شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور آج انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ عزادار نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس نکالے جائیں گے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ کراچی میں مرکزی جلوس کچھ دیر میں نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانی امام بارگاہ گھاردر میں ختم ہوگا۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس شہداء چوک علمدار روڈ سے برآمد ہوگا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا علمدار روڈ پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ راولپنڈی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حفاظت علی شاہ تیلی محلہ سے برآمد ہوگا۔ جلوس روٹ کو سیل کر کے شرکاء کے داخلے کے لیے ایک راستہ مختص کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں یوم عاشور کا جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس آج کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں کے لیے سبیلیں اور نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں 10 محرم کا مرکزی جلوس عزاخانہ شبیر سے برآمد ہوگا۔ ضلع بھر میں سینکڑوں مجالس اور جلوسوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ ملتان میں عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ ہیرا حیدریہ سے برآمد ہو گیا۔ بات کریں گے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لاہور سے ساتھ حاصل ہے سالک نواز کا، فیصل آباد سے ہم اپڈیٹ کریں گے نعیم قیصر، اور ملتان سے تمام تر صورتحال ہم تک پہنچائیں گے مقصود چوہان۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں لاہور کا۔ سالک نواز بتائیے گا سیکیورٹی کے کیسے انتظامات دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ جی بالکل، لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس جو کہ نثار حویلی سے برآمد ہوا تھا، وہ اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد میں موجود ہیں، جبکہ جلوس کے راستوں میں سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جلوس آج کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس جلوس میں جو عزادار شریک ہیں، ان کی جانب سے جو شہداء کربلا ہیں، ان کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پہ سیکیورٹی کے بھی پولیس کی جانب سے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ 10,000 کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ یہاں پر سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے علاقے کو خاردار تاریں لگا کے بند کیا گیا ہے، جبکہ ادھر آنے والے جو عزادار ہیں ان کی 3 مقامات جو ہیں وہاں پر تلاشی لی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے رضاکار ان کی تلاشی لیتے ہیں، اس کے بعد انہیں واک تھرو گیٹ سے گزارا جاتا ہے، اور آخر میں پولیس اہلکار جو ہیں وہ ان کی تلاشی لیتے ہیں، جبکہ خواتین کے لیے علیحدہ انتظام موجود ہے۔ لیڈیز پولیس یہاں پہ تعینات کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں ان کی مدد سے بھی جلوس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، جبکہ پہلی مرتبہ کیو آر کوڈ سسٹم جو ہے، ایمرجنسی بٹن جو ہے، وہ بھی یہاں پر نصب کیے گئے ہیں، جبکہ جو عمارتیں ہیں ان پر سنائپرز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسپیشل برانچ، رینجرز اور دیگر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اہلکار بھی موجود ہیں۔ یہ جلوس جو ہے یہ کربلا گام شاہ پہنچ کر آج اختتام پذیر ہوگا۔ جو جلوس ہے وہ نثار حویلی سے برآمد ہوا تھا اور رات گئے وہ
मोहल्ला शिया पहुंचा, जहां पर अजान अली अकबर दी गई और इस वक्त जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जी सही, तो जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। सालिक आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम यासिर हकीम से बात करते हैं। यासिर, आप बताइए कि कहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं, जुलूस कहाँ से बरामद होगा? देखिए, इस वक्त हम कमेटी चौक मौजूद हैं और 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस आज दोपहर के वक्त इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होगा और अपने मुकर्रर रवायती रास्तों से गुजरेगा। जुलूस बरामद होने के बाद कमेटी चौक पहुंचेगा। कमेटी चौक से गुजरता हुआ इकबाल रोड, बर्ड मार्केट, ट्रंक बाज़ार, बोड़ बाज़ार, फवारा चौक, डिंगी कुई चौक, पुराना किला और जामिया मस्जिद से रोड से गुजरकर रात गए जाकर इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान इस जुलूस में छोटे बड़े 6 मजीद जुलूस भी शामिल होंगे। जुलूस जब फवारा चौक पहुंचेगा तो वहीं पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी, वहीं पर मजलिस बर्पा की जाएगी और वहीं पर फ़लसफ़ा हुसैनियत पर जो है वो रोशनी डाली जाएगी। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से खसूसी इंतजामात किए गए हैं। रावलपिंडी पुलिस के तकरीबन 5,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो सिर्फ इस मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं और मजमूई तौर पर ज़िला भर में आज जितने जुलूस 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से निकाले जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए 8,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस के इस रूट को जो तकरीबन 6 किलोमीटर पर तवील है, इस रूट को सील किया गया और जुलूस में शुरका की आमद के लिए सिर्फ एक रास्ता मुख्तस किया गया है। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ेगा तो वहाँ नज़दीकी मौजूद रास्ते के ज़रिए शुरका को इस जुलूस में आने की इजाज़त दी जाएगी। शुरका के दाखिल होने से पहले 3 लेयर्स में उनकी सिक्योरिटी चेक की जाएगी, उनको बाकायदा तौर पर बॉडी सर्च किया जाएगा, वॉक थ्रू गेट से निकाला जाएगा और मेटल डिटेक्टर के जरिए उनकी बॉडी सर्च की जाएगी, जिसके बाद उन्हें इस जुलूस में आने की इजाज़त दी जाएगी। जुलूस के रूट को सील करने के साथ इससे मुल्का जितनी सड़कें हैं, जितनी गलियाँ जाने आ रही हैं, उन तमाम को खालदार तारे लगाकर, कनाते लगाकर, बड़ी रुकावटें खड़ी करके मुकम्मल तौर पर सील किया गया। जुलूस के रूट पर जितनी इमारतें हैं, जितने कारोबारी मराकज़ हैं, जितनी दुकानें हैं, जितने घर हैं, वो तमाम का तमाम एरिया सील कर दिया गया, जबकि जुलूस के रूट पर बुलंद इमारतों पर पुलिस के माहिर स्नाइपर तैनात कर दिया गया। दूसरी जानब पुलिस का ये भी कहना है कि इस जुलूस के 6 किलोमीटर तवील रूट पर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए जितने सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं उनसे उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। ताजिर तंजीमों की जानिब से जो कैमरे लगाए गए थे उनको मुख्तलिफ IPs के ज़रिए पुलिस ने अपने सिस्टम से इंटीग्रेट किया है और उससे इस जुलूस की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आज के दिन के लिए इन सिक्योरिटी इंतजामात के लिए मेट्रो बस को बंद रखा गया है। जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस रूट की जानिब आने से रोक दी गई है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बस सर्विस को भी रावलपिंडी में मुअत्तल रखा गया है ताकि जुलूस के सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ बनाया जा सके। जुलूस के इस रूट को सील करने के बाद चूँकि ट्रैफिक के निज़ाम को भी बहाल रखना था तो ट्रैफिक के निज़ाम के मद्देनज़र जुलूस की जानिब आने वाले जितने रास्ते उन्हें मुख्तलिफ जगह पर डाइवर्शन पॉइंट लगाए गए और ट्रैफिक पुलिस के तकरीबन 1,200 से ज़ायद वार्डन्स तैनात किए गए ताकि ट्रैफिक को मुख्तलिफ रास्तों से दूसरी जानिब मोड़ा जा सके। अब से कुछ देर बाद जुलूस के इस रूट की जो स्पेशल ब्रांच है उसके साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड बाकायदा तौर पर स्कैनिंग करेगा और स्कैनिंग का ये मरहला मुकम्मल होने के बाद दोपहर 11:30 से 12 बजे के दरमियान इस जुलूस की स्कैनिंग की रिपोर्ट ओके होगी जो ज़िले इंतज़ामिया को फराहम की जाएगी और उसके बाद ही इस जुलूस को आगाज़ की इजाज़त दी जाएगी। उससे कबल इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला में मजलिस होगी। जी ठीक है, शुक्रिया, हमने हमें तफसीलन अपडेट किया। साथ ही मौजूद रहिएगा। मकसूद चौहान का रुख करते हैं। मकसूद, आप बताइएगा, यहाँ से जो मरकज़ी जुलूस है वो बरामद हो चुका है, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, जुलूस का क्या रूट रहेगा? जी बिल्कुल, मुल्तान में जो मरकज़ी जुलूस है इमाम बारगाह हीरा हैदरे से बरामद हो चुका है और अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। मुल्तान में डिवीज़न की अगर बात की जाए तो ज़िला मुल्तान में आज 116 जुलूस जो हैं वो बरामद होंगे, जबकि 130 मजालिस जो हैं वो बर्पा होंगी। सिक्योरिटी की जो है वो सख्त इंतज़ामात यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। 4,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार व अफसरान जो हैं उनको तैनात किया गया है, जबकि इनके साथ साथ इन रेंजर्स और पाक आर्मी की भी जो है इनको मामनत हासिल होगी और जो जुलूस के रूट्स हैं उनके को खारदार तारों से बंद किया गया है। वॉक थ्रू गेट के थ्रू जो है शहरियों को जुलूस में दाखिल होने दिया जा रहा है। 600 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी जो है वो तैनात किए गए हैं और ट्रैफिक को भी जो है वो डाइवर्शन के पॉइंट से मोड़ा जा रहा है और जुलूस में जो है ट्रैफिक की रवानी को नहीं आने दिया जा रहा। दूसरा
यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका भी रास्ता बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरास के थ्रू जो है रूट्स की जो है निगरानी की जा रही है। बाकायदा तौर पर सेफ सिटी ऑफिस पे कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहाँ से इस चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है और जुलूस के रूट्स पर जितने भी तजारती मराकज़ हैं, दुकानें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है और जुलूस के रास्तों पर नज़र न्याज और सबील का भी ख़ास एहतमाम किया गया है। सिक्योरिटी यहाँ पर इंतहाई सख्त की गई है। खारदार तारे लगाई गई हैं। किसी गैर मुश्तबा अफराद को जो है बगैर चेकिंग के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जी सही, आप हमारे साथ ही रहेगा। नईम कैसर से बात करते हैं। नईम, आप बताइएगा कि आप कौन सी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर जुलूस का क्या रूट रहेगा? देखें, जो फैसलाबाद का यौम आशूर 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस है, ये अज़ाखाना शब्बीर से बरामद होता है, जो कि थोड़ी देर बाद बरामद हो जाएगा। अभी मजलिस चल रही है। सुबह वहाँ पर अज़ान अल अकबर जो है वो दी गई है, तो उसके बाद से मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है। मजमूई तौर पर फैसलाबाद में आज 163 मजालस होंगी और 246 जुलूस जो हैं वो निकाले जाएंगे। जो मरकज़ी जुलूस है वो अज़ाखाना शब्बीर से बरामद होगा और छोटे जुलूस जो हैं वो आकर इसी में शामिल हो जाएंगे। मैं इस वक्त GTS चौक में मौजूद हूँ और GTS चौक से लेकर यहाँ से अगर मैं बात करता चलूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तमाम जो रास्ते हैं और बाज़ार है उसको खारदार तारों से, बैरियर से और मसदे खड़े करके मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। और इससे पहले दुकानें बंद करने से पहले, बाज़ार बंद करने से पहले मुकम्मल जो है वहाँ पर स्कैनिंग की गई है, जामा तलाशियाँ ली गई हैं और अब तमाम रूट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। गाड़ियों के लिए सिर्फ बाहर आ सकते हैं। शहर के अंदर जाने के रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं मजमूई तौर पर आज ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और जुलूस के आगे और पीछे पुलिस की 3 लेयर्स जो हैं वो होंगी। रस्सा बरदार पुलिस एहलकार मौजूद होंगे जो कि मुकम्मल जामा तलाशी लेंगे और जामा तलाशी लेने के बाद जो अज़ादार होंगे वो जुलूस के अंदर दाखिल हो सकेंगे। इसी तरह जो ख़वातीन अज़ादार होंगी उनकी भी ख़वातीन एहलकार जो हैं वो जामा तलाशी लेगी। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस मोबाइल्स हैं उनके ऊपर भी CCTV कैमरा नस्ब होंगे जिससे मशकूक अफराद जो हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी। और उसके साथ साथ जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। घंटाघर के अतराफ तमाम ताजरों के कैमरे जो हैं वो सेफ सिटी के साथ कनेक्ट हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम से बाकायदा जुलूस के रूट जो है उनको मॉनिटर किया जा रहा है और इर्द गिर्द के जो रास्ते हैं वहाँ पर नज़र रखी जा रही है, मशकूक अफराद के ऊपर नज़र रखी जा रही है। और साथ साथ जो जिनके परमिट बने होंगे वो एक रास्ते से लंगर जो है और उसके साथ सबीलें जो हैं वो जुलूस के अतराफ रास्तों तक पहुँचेगी जहाँ से अज़ादार जो हैं वो लंगर भी खाएंगे और उसके साथ साथ उनको मशरूबात मुख्तलिफ जो हैं वो भी साथ साथ दिए जाएंगे। तो तकरीबन 2 घंटे तक ये जुलूस जो है ये बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये घंटाघर चौक पहुँचेगा और वहाँ पर नमाज ज़ोहरैन जो है वो अदा की जाएगी। वहीं पर मजलिस होगी और मजलिस के बाद जुलूस अपने मरकज़ी रास्तों से होता हुआ धोबी घाट अज़ाखाना शब्बीर जो है वहाँ पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर शाम गरीबा जो है वो बर्पा की जाएगी। तो ओवरऑल सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। रात भर यहाँ पर पुलिस की जानब से मॉनिटरिंग की गई है और उसके साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो भी अलर्ट होंगे और छतों के ऊपर स्नाइपर जो हैं वो भी तैनात होंगे। तो हंगामी सूरत से निपटने के लिए पुलिस की जानब से मुकम्मल जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं और फिर अज़ादारों के लिए मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स जो हैं वो भी साथ साथ लगाए गए हैं जहाँ पर अज़ादार जो हैं उनको तिबी इमदाद दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में भी अजाफी बेड जो हैं वो अज़ादारों के लिए मुख्तस किए जाएंगे, जहाँ पर अज़ादारों को अगर किसी के ज़्यादा कोई चोट आ जाती है या कट लग जाता है तो उसको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल पुलिस और उसके साथ साथ दीगर अदारे जो हैं उनके एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नज़र रखे हुए हैं, मशकूक अफराद के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और फिर जो जुलूस के रास्ते हैं वहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन सिग्नल हैं वो भी बंद किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या जो है उससे ऊपर नज़र रखी जा सके और कोशिश की जाए कि इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो ना हो। तो सिक्योरिटी जो है इंतहाई गैर मामूली, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं हमें फैसलाबाद में दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी रास्ते हैं यहाँ पर GTS चौक और लारी अड्डा जाने के लिए सिर्फ यहाँ पर आया जा सकता है। शहर के अंदर जाने के लिए तमाम रास्ते जो हैं वो बंद हैं और आज रात तक मुकम्मल तौर पर ये रास्ते बंद रहेंगे। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहेगा ज़ीशान मुग़ल। आप बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? मरकज़ी जुलूस नशर पाक से बरामद हो चुका है?
जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम हराम का जो यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस है वो अब से कुछ देर के बाद नश्तर पार्क से बरामद होगा। इस वक्त जो है नश्तर पार्क में मजलिस का अमल जारी है, जबकि जो मजलिस है उससे खिताबत के जो फ़राइज़ हैं वो अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी जो है वो सरंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में जो छोटे बड़ी जो मजालिस है उसमें तकरीबन 20,000 से जो ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो मुख्तलिफ मजालिस और इसके अलावा जुलूसों में तैनात किए गए हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए जो मरकज़ी जुलूस है इसी सिक्योरिटी की तो तकरीबन 6,800 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो जो है अपनी ड्यूटी पर इस वक्त सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो लेडीज़ पुलिस एहलकार हैं तकरीबन 150 से ज़ायद वो भी ड्यूटी पर मामूर हैं। और इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस काम है उनके जो एहलकार हैं वो भी इस स्पॉट पर मौजूद हैं ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। और मुख्तलिफ जो डाइवर्जन्स हैं वो ट्रैफिक के लिए दी गई हैं। आज जो है मेन एम ए जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। इसके दोनों ट्रैफिक के जो ट्रैक हैं वो बंद रहेंगे, जबकि शहरियों से अपील की गई है वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। इसके अलावा बात की जाए जो पुलिस के साथ साथ जो रेंजर्स के जवान हैं वो भी इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं। जुलूस के रास्ते में तमाम तर जो छोटे बड़े रास्ते जुलूस को कनेक्ट करते हैं वहाँ पर जो है मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके कंटेनर खड़े करके उन्हें बंद कर दिए गए, जबकि जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम तर दुकानें और मार्केटों को जो है वो जो है रात का बंद कर दिया गया था। इसके अलावा बताया गया है इंतजामी की जानिब से जैसे ही जुलूस यहाँ से नेशनल पार्क से बरामद होगा तो इससे पहले जो है BDS की जो टीमें हैं और इसके अलावा सुराग रसा जो कुत्ते हैं सुराग रसा कुत्तों के जरिए तमाम तर अमल जो है वो क्लीनिंग का स्वीपिंग का वो मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद जो है जुलूस को आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। जबकि जो इंतजामी के मुताबिक जो अज़ादार हैं इसके अलावा ज़ायरीन हैं वो जो है वो नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे तिब्बत सेंटर पर, जिसके बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ ईरानिया हुसैनिया कारादर में जाकर एहतमाम पजीर होगा। इसके साथ साथ जो रास्ते में आने वाली तमाम तर बुलंदबारा इमारतें हैं वहाँ पर शार्प शूटर जो हैं वो तैनात कर दी गए हैं, जबकि जदीद डिजिटल कैमराज के ज़रिए इस जुलूस की जो है इस वक्त निगरानी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान मुग़ल, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से लम्हा ब लम्हा की जो सूरत हाल है जुलूस के मुकर्रर